I have cold drink bottle in my hand. When I open this cold drink bottle, fizzing will occur. Effervescence is shown by this bottle. Effervescence means bubbling. You can see. Can you think why it happens? And which gas is evolved from this bottle? इसके अलावा हम और बहुत सारी बातें सोच सकते हैं. माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम. पहाड़ों पे चढ़ने वाले पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं. Why? Besides that, you can also think sea divers also fill some other gas with oxygen gas. Why? कहने का मतलब समुद्री गोताखोर नीचे जाने पे, समुद्र में जाने पे ऑक्सीजन सिलेंडर में कोई और दूसरी गैस भी लेके जाते हैं. ऐसा क्यों? Also you can think why aquatic animals feel comfortable in cold water as compared to hot water. पानी में रहने वाले जीव जंतु ठंडे पानी में ज्यादा अच्छा महसूस क्यों करते हैं गर्म का पानी की बजाय? थिंक अबाउट इट. आज हम इसी बारे में सोचते हैं. वेलकम लर्नर्स. टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज हेनरीज लॉ. दिस हेनरीज लॉ comes under the chapter's name Equilibrium of class 11 and solution of class 12. What it states? इसका प्रिंसिपल क्या है? It states that the mass or the amount of a gas dissolved per unit volume of a solvent at particular temperature is directly proportional to the pressure of gas in equilibrium with solution. कोई गैस किसी लिक्विड सॉल्यूशन में घुली हुई है और वो कितना ज्यादा देर तक या कितनी ज्यादा मात्रा में उसमें घुली रहेगी वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर कितना प्रेशर लगाया गया है. जब इसको पैक किया गया है या इसको रखा गया है तो उस पर जितना ज्यादा प्रेशर लगाया गया होगा और अगर उसको हाई प्रेशर में रखा जाएगा तो उतनी ही ज्यादा वो घुली रहेगी. सो वी हैव टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मास एंड प्रेशर. We can also write here the expression of this principle, that is mass that equals to pressure. That is mass or amount of the gas and that is pressure. And we can also write here m is equal to Kp where K is proportionally constant. After that, Dalton also observed individually that not only the mass or the amount of the gas but also solubility of the gas depends on प्रेशर अप्लाइड ऑन इट. किसी गैस की सोल्युबिलिटी उसका घुलना इस बात पे डिपेंड करेगा उस पर कितना प्रेशर लगाया गया है. सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज x डायरेक्टली इक्वल्स टू p अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स ऑब्जर्वेशन. x is mole fraction and it is equal to number of moles of given component divided by total number of moles of all components and it is a measure of solubility. solubility को x से रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे और किसी गैस की solubility इस बात पे डिपेंड करेगी उस पे कितना प्रेशर लगाया गया है. इसका मतलब जितना ज्यादा प्रेशर लगाया होगा उतनी ही ज्यादा देर तक उसमें वो घुली रहेगी, उतनी ज्यादा अमाउंट तक वो घुली रहेगी.
So we can also go in details of this expression, that is x is equal to k prime t and t is equal to 1 by k prime into x, and at last we can write here kh into x, where kh is equal to 1 by k prime and it is known as Henry constant. This Henry constant will affect the solubility. We can see this solubility factor is opposite of the Henry's constant. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. So with the increase in temperature, the value of kh will be high and the solubility will become less. That's why aquatic animals feel more comfortable in cold water as compared to hot water. उनको ठंडे पानी में ज्यादा अच्छा महसूस होता है क्योंकि उसमें ज्यादा सोलिबिलिटी होती है. कौन सी गैस की? ऑक्सीजन गैस की. हाइयर टेम्परेचर kh will be high, solubility will be less. So lower temperature, low value of kh and solubility will be high. कहने का मतलब टेम्परेचर कम रखेंगे, ठंडा पानी होगा तो सोलिबिलिटी ऑक्सीजन गैस की उस पानी में ज्यादा होगी. That's why the aquatic animals or fish feel more comfortable in cold water as compared to hot water. Now, one term I discussed in this principle, that was equilibrium. जो भी आपकी गैस घुली हुई होती है, जैसे कि इन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा जाता है. That's why they are known as carbonated water. इनको हम कार्बोनेटेड वाटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा गया है. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है, दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैक की गई थी हाई प्रेशर से, वो सॉल्यूशन के अंदर है इक्विलिब्रियम में. दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम and comes under physical equilibrium in class 11. So now we move about the limitation of this principle. What are the limitation of this principle? When it will be valid? ये principle कब applicable होगा? This principle will be applicable only when there is low pressure and not too low temperature. Gas not reactive and not dissociate and not associate. जो भी हम गैस लेने वाले हैं वो आपकी उस लिक्विड सॉल्यूशन में ना तो आसानी से रिएक्ट कर पाए, ना ही वो टूट पाए, ना ही उसके मॉलिक्यूल जुड़ पाए. तो दीज आर द लिमिटेशन. दिस विल बी वैलिड ओनली व्हेन प्रेशर इज लो. ये एप्लीकेबल तभी होगा जब हम कंडीशन ऐसी रख रहे हैं जब प्रेशर बहुत कम है और टेम्परेचर इतना भी कम नहीं है और गैस जो वो रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए और ना ही वो टूटनी चाहिए और ना ही वो जुड़नी चाहिए, उसके मॉलिक्यूल्स ना ही जुड़ने चाहिए. Now, what are the application of this law? Where it is applicable? ये प्रिंसिपल कहां काम आता है? As I told you, what was asked from you, that is in deep sea diving. इसको हम स्क्यूबा डाइविंग कहते हैं. Second one, in functioning of lungs. And third one, at high altitudes. And fourth one, that is in production of carbonated beverages. बेवरेज में मतलब होता है पेय पदार्थ. अब देखिए हम इन चीजों को करेंगे, क्या एप्लीकेशन है. विल लर्न one by one, all these applications will learn one by one. First is in deep sea diving, scuba diving. We have seen that whenever sea divers or scuba divers goes at the depth, the nitrogen gas which is present in their compressed air is at high pressure, and when they come at the surface, the pressure of nitrogen
nitrogen gas is low, so what will happen? You think about that. ये सरफेस है जैसे समुद्र का, और ये उसका बॉटम या उसकी डेप्थ है। जैसे सी डाइवर्स नीचे की तरफ जाते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन गैस एट हाई प्रेशर, and here nitrogen gas at the surface is at low pressure. ऑक्सीजन सिलेंडर जो कैरी करते हैं, अगर वो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है तो उसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है नीचे जाने पे, लेकिन जैसे ही वो ऊपर की तरफ आते हैं, सरफेस पे आते हैं, तो नाइट्रोजन का प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर में वो कम होता है। सो व्हाट विल हैपन? कंडीशन विल बी जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक बॉटल। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस को हाई प्रेशर से पैक किया गया था। जैसे ही वो ऊपर आते हैं तो प्रेशर बहुत कम है, और प्रेशर अगर कम होगा, व्हाट विल हैपन? नाइट्रोजन गैस विल मूव क्विकली फ्रॉम देयर बॉडी फ्लूइड्स, एंड ड्यू टू दैट बबल्स विल बी फॉर्म्ड, एंड देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस ऑफ बर्स्टिंग ऑफ देयर ब्लड कैपिलरीज, एंड ड्यू टू इट starvation of oxygen will be felt by their tissues, and this condition is known as bands. क्योंकि नाइट्रोजन गैस हाई प्रेशर पे थी, नीचे ऊपर आने पे लो प्रेशर हुआ, तो नाइट्रोजन गैस तेजी से बाहर निकलना शुरू करती है, जिसकी वजह से उनके ब्लड के अंदर बबल्स बनने लग जाते हैं और ब्लड कैपिलरीज फटने लग जाती हैं, और ऐसा होने पे उनके बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बैंड्स बनना, एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल, डेंजरस एंड पेनफुल कंडीशंस फॉर सी डाइवर्स। सो टू अवॉइड सच टाइप ऑफ बैंड्स फॉर्मेशन, हीलियम गैस इज यूज्ड। सो ऑलवेज रिमेंबर, नाउअडेज हीलियम गैस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन टू अवॉइड any type of bands. Why helium? Because helium is less soluble in our blood, और जितनी solubility कम हुई, इसका मतलब जितनी उसकी solubility अगर हमारे ब्लड में कम हुई तो प्रेशर का डिफरेंस अराइज नहीं होगा, बिकॉज एक्स इज डायरेक्टली टू प्रेशर। solubility कम ब्लड में तो प्रेशर भी कम, तो प्रेशर का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा सरफेस पे और डेप्थ पे। That's why helium gas is used. Another reason behind that, helium is having small size of helium atoms. Helium gas में helium atom का साइज छोटा होता है, so that is the reason behind helium utilization, because helium is having small size and it is less soluble, it has less affinity to dissolve in our blood and body fluids. That's why nowadays helium is used. It is very important question which is asked in your exams. Now, in functioning of lungs, अगर वो नाइट्रोजन गैस को फिल करके ले भी जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में, ऊपर आने पे क्या ट्रीटमेंट की जाए? ऑक्सीजन गैस को डाइल्यूट किया जाए, किसके साथ? हीलियम गैस के साथ। That is the second application of Henry's law. Now, at high altitudes, you have observed whenever mountaineers climb mountains, they will carry oxygen cylinder with them. वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके ही क्यों जाते हैं? पहाड़ों पे चढ़ने वाले पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत क्यों होती है? रीजन बिहाइंड दैट, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट माउंटेन्स एट हाई एल्टीट्यूड इज लो एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल। नीचे प्रेशर ज्यादा है, पहाड़ों पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, और प्रेशर कम हुआ तो उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, या फिर प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी हमारे ब्लड में, तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं घुलेगी, एंड ड्यू टू दैट वी विल फील वीकनेस एंड देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड वी विल नॉट बी एबल टू थिंक। दिस कंडीशन इज नोन एज एनोक्सिया। ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब भी हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमें ऐसा लगने लग जाता है किसी ने गला पकड़ लिया है, हमें सफोकेशन फील होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। ऑक्सीजन विल नॉट बी डिजोल्व इन अवर ब्लड,
क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन कम है, अमाउंट कम है और सोलिबिलिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि उसका प्रेशर कम है। वहां पे प्रेशर कम, सोलिबिलिटी कम। दैट्स व्हाई दे विल कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। नाउ लास्ट वन, इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कार्बोनेटेड बेवरेज होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर से पैक किया जाता है और जैसे ही उसको ओपन करते हैं, व्हाट विल हैपन? फिजिंग, एंड दैट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच वाज एट हाई प्रेशर। वो आपकी इसमें घुली हुई थी हाई प्रेशर से, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा घुली हुई। लेकिन जैसे ही हमने खोला, बाहर का प्रेशर कम, तो यह घुली नहीं रहेगी। ये CO2 का जो जिन है ना, ये बाहर निकल के आ जाएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। एंड दैट्स अबाउट हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर तेजी से निकल के आती है, उसी तरह से जैसा कि यहां पे हमने नाइट्रोजन गैस के केस में देखा था और बबल्स बने थे और यहां भी बबल्स बने, वहां भी वो खतरनाक था। सो प्लीज अवॉइड दिस कोल्ड ड्रिंक्स or carbonated water as much as possible. This is my message to you. Thanks to all learners. All the best.